चैट रिफ्रेश करो। करो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, स्पोकन में आज मैं लास्ट टाइम आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म करा रही हूं। अब आपको मैं थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर का थोड़ा एहसास करा दूं। रिफ्रेश करो। यस, व्हाट वाज द फाइनल विश? फाइनल विश क्या था उसका, बताओ। मंकीज पॉ में फाइनल विश उसने किया होगा, उसके फादर ने, लड़के के फादर ने, कि जो ये आया है उसको आप वापस भेज दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। यानी कि अगर म्यूटिलेटेड बॉडी जो था लड़के का, अगर वो आ गया होता तो फिर क्या होता, समझ सकते हो ना। एक मरा हुआ इंसान फिर आ गया होता तो क्या होता। नाउ सी, मैं आपको स्टोरीज शेयर करते रहूंगी। स्टोरीज इसलिए शेयर करते रहूंगी क्योंकि मैं वर्ब का जो सेकंड फॉर्म मैंने सिखाया है उसको याद रखना कि जो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज जो हमने सीखा है, सिर्फ एक सीखा है, दैट इज फॉर पास्ट एक्शन। नाउ रिमेंबर, व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन, you talk about something that happened in the past। बहुत ध्यान से सुनोगे। आज मैं हिंदी में बहुत कम बोलूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं जो मैं बोलूं उसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। When we talk about our past, we talk about past action. Like, suppose I want to tell you about whatever I did yesterday. Now, I did yesterday. Then who is the subject? For past action in active voice, you have to start with the subject. I said what I did in the past, I did yesterday. You start with subject. Then you proceed to the second form of verb. And if it is a negative sentence, you use did not. The short form of did not is didn't. You write didn't, but you say didn't. After did not, you use the first form of verb. That means the same form that is the first form. That the same form that is the base form. Generally, the base form and the first form are the same. So it is very easy for you. But you have to learn the second form. Now, soon after the verb, you feel like asking what? You feel like asking whom? If I say, I met, you will say whom? किससे मिले आप? If I say, I studied, you will ask me what? क्या पढ़ा आपने? That means soon after the verb, we use क्या और किसको. The answer to that क्या और किसको is the object. And after this object, when you write subject, verb and object, and after this object, you use whatever like adverb, adjective, complement and everything. So after this we use that adverb etc.
That means whatever you want to write, write after the adverb, not before that. That means before we finish the subject, verb and object, you cannot use anything else. You have to understand that for past action, first you need to finish this portion, right? So when you try to translate, don't translate word for word. Pick up the subject, then the verb, and then the object, and then you can write whatever you want. So this is the structure of simple past tense, and in every story I give the same structure. Any question? Refresh karo. Next. Yes, Sashi, very good. Next. Causative verb, I am not teaching right now. Reasoning का फी कम करवा चुकी मैं पंकज. रीजनिंग का फीस आज रात तक 600 है. 70% डिस्काउंट दे रही हूं आज रात तक. इट इज 600 टुडे. आज फर्स्ट है, फर्स्ट के रात तक आपका रीजनिंग का फी 599 है. 70% ऑफ है. प्रदीप, जब तक मुझे अच्छे से नहीं सिखा दूंगी मैं खुद ही नहीं छोड़ने वाली हूं आपको. ठीक है, रिफ्रेश करो. सी Krishan, I told you before you finish talking about the subject and the verb and the object, do not include anything else. You have to understand that after the subject you need to use V2. If it is negative, use did not plus V1, and then you use the object, and anything that you want to say must come after that. Now see, if you want to translate, you need to translate it properly, and you should think how to translate that. Suppose I say, कल मैंने क्या किया था. कल सुबह 8 बजे मैं उठी थी. मैं उठी थी कल सुबह 8 बजे. Now I will say, I wake का second form है woke. We need to use second form, woke up. उठना is wake up. Second form is woke up. Now मैंने कहा 8 बजे. Now 8 बजे क्या है? टाइम है. With time, ध्यान से सुन लो. With time you use preposition at. ठीक है? Preposition at. Complete? Next, if you want to say, then I went to, आप बाथरूम वगैरह गए, then आपने बात लिया, then आपने नाश्ता किया, then आप कहीं मिलने गए. So आप इन सब को कहते हो कि भाई ये तो डेली रूटीन है. हम डेली रूटीन के बारे में थोड़ी इतना डिटेल में देंगे. तो कैसे कहोगे? लिखोगे आफ्टर my daily routine work, or after my bath also you can say, या after going to washroom also you can say, और सब कुछ मिला दिया मैंने तो after my daily routine work you can say, या after my daily routine is sufficient you can say, daily routine is sufficient, comma, उसके बाद आपने क्या किया. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जितना भी काम मैंने किया है सब कुछ पास्ट टेंस में है. मैं पढ़ने के लिए बैठा या मैं पढ़ा. मैं क्या पढ़ा? इफ यू से आई सैट. नाउ सिट का सेकेंड फॉर्म है सैट. पढ़ने के लिए. नाउ अगेन द सेकेंड वर्ब. रिमेंबर, the first verb changes according to tense. The second verb is generally in infinitive form. क्या कहा? The first verb changes according to tense. The second verb is generally in infinitive form. To study. ठीक है? If you want to say
कि मैं पूरे दिन पढ़ना चाहता था. नाउ दिस इज सिंपल पास्ट. पूरे दिन पढ़ना चाहता था. दैट मीन्स द मेन एक्शन इज चाहता था. I wanted. Now see, you said मैं पूरे दिन, बीच में लगा दिया था पूरे दिन. But I told you between the subject and the verb, nothing should come. So I just said I wanted because before the verb, nothing should come after the subject. I wanted क्या? पढ़ना, to study. अब सुनो ध्यान से. पूरा दिन इज होल डे. क्या कहा मैंने? ये छोटी छोटी चीजें याद रखना. आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट इन प्रॉपर लैंग्वेज. आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर द होल डे. मैं आपको एक स्टोरी में भी दिखाऊंगी. आपको प्रेपोजिशन मार्क करना है. ध्यान दो. होल इज पूरा, पूरा पूरा, संपूर्ण जिसको कहोगे. होल डे. डे क्यों कहा है? क्योंकि कल की खाली बात हो रही है. वाई दिस द? आप जब थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज हो जाएगा पढ़ोगे कि होल के साथ जनरली हम द लगाते हैं. एंड वाई दिस फॉर? जब भी अब अवधि की बात होती है ना, अब होल डे क्या है? एक अवधि है. इसलिए अवधि के साथ यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं. और एग्जाम्पल सोचो. I wanted to study for 2 hours. I wanted to study for 5 hours. I wanted to study for 30 minutes. I wanted to study for half an hour. I wanted to study for half a day. एक दिन नहीं, आधा दिन. So when you talk about the what? Period of time. You use for. लेकिन मेरा दोस्त आ गया. लेकिन इंग्लिश इज बट. मेरा दोस्त यानी when you talk about possession like my friend came. But my friend came. See how we make the sentences. रिमेंबर क्या है? लेकिन मैं कहना चाह रही हूं, लेकिन मेरा दोस्त ठीक उसी समय आ गया. मेरा दोस्त ठीक उसी समय आ गया. बट इन इंग्लिश आई विल राइट मेरा दोस्त आ गया. सेकेंड फॉर्म केम. ठीक उसी समय, एट दैट टाइम. और ठीक के लिए हम लगाते हैं जस्ट एट दैट टाइम. देखो जस्ट का मतलब ठीक. टाइम के साथ अभी मैंने कहा था ना एट आता है. एट 8 AM वही तो लगाया. उसी समय आ गया. जस्ट एट दैट टाइम. सी द सेंटेंस. मैंने कहा मेरा दोस्त ठीक उसी समय. ठीक उसी समय बीच में नहीं आएगा. मेरा दोस्त क्या आ गया. ठीक है ना? इसका मतलब है पहले वो खत्म करूंगी, बाद में सब कुछ. सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? दिस मीन्स when you start a sentence, start with subject, then the verb and then the object. एक स्टोरी होगा उसमें monkeys walk करके कर्फ्यू वाले ग्रुप में. उसको जरा डालते तो दूसरे पेन ड्राइव में, चाहे इसी में पेन ड्राइव में डाल देना. क्लियर हो गया? सी देन हम लोग घूमने निकल गए बाहर. हम लोग बाहर घूमने निकल गए. हम लोग बाहर घूमने निकल गए. वी निकल गए. गो का पास्ट टेंस वेंट. वेंट का मतलब सेकेंड फॉर्म. वेंट आउट फॉर अ वॉक या अ राइड. फॉर अ वॉक या फॉर अ राइड है ना. फॉर अ जॉय राइड भी कह सकते हैं. हाँ, फॉर अ जॉय राइड भी कह सकते हैं. मतलब इसका मतलब है कि ऐसे ही घूमने टहलने निकल गए तो फॉर ए वॉक. किसी बाइक से निकले हो तो फॉर ए राइड. और ऐसे ही मस्ती के लिए निकले हो तो फॉर ए जॉय राइड. सो रिमेंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब
के बीच में कुछ मत लगाना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा कुछ मत लगा देना जो आपको महसूस हो कि दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। हम लोग घर वापस आए, वी रिटर्न्ड 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 hours। नाउ सी, ऐसे जगह पे हो सकता है आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी जरूरत पड़े। कैसे? और हमारी माँ लंच में हमारा इंतजार कर रही थी। हमारी माँ, मेरी माँ मतलब ना। एंड आई फाउंड, मैंने पाया। देखो, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड। देख रहे हो? सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना सीखो। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई फाउंड क्या? माई मदर। ठीक है, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर पहले सिखाती हूं आपको। आई फाउंड दैट कि माई मदर वॉज वेटिंग, वॉज वेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आपको स्टोरीज में आ जाएगा, जिसपे अब मैं जा रही हूं सेकेंड में। वॉज वेटिंग फॉर अस। अब मेरा बात ध्यान से सुनना। आस मतलब क्यों? आस क्यों? भाई सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, हम दोनों का इंतजार कर रही थी। नाउ सी, माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? फॉर लंच। अब सुनो, कई बार ऐसा होगा कि आप ये दैट गायब पाओगे। आई फाउंड किसको? माई मदर। उस समय मदर क्या कर रही थी? वेटिंग। अगर दैट हटा दोगे तो वॉज भी हट जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं कनेक्ट करने के लिए दैट नहीं लगाऊंगी ना, तो ये वॉज भी हट जाएगा और मीनिंग होगा माई मदर वेटिंग। आई फाउंड माई मदर क्या करती हुई? वेटिंग फॉर अस। यानी मां की अवस्था बता रहा है, वेटिंग फॉर अस। ठीक है ना? माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस। दो क्लियर? नाउ सी, इन पास्ट, इन पास्ट एक चीज ध्यान रखना, पास्ट में आप एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज पाओगे, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अभी जितने स्टोरीज पढ़ोगे उसमें बस यही पाओगे, क्योंकि मेरी मां इंतजार कर रही थी, तो माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस। ठीक है? और कभी कभी जब बहुत भूतकाल की बात होगी ना, बहुत पास्ट की, तब कभी कभी आप हैड प्लस V3 भी देखोगे। ये ध्यान रखना। वॉज का इस्तेमाल आप देखोगे आई के साथ और बाकी सब सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, उनके साथ। और वर का इस्तेमाल देखोगे यू के साथ और जितने बहुवचन हैं उनके साथ। ठीक है? कब? ये जब हो रहा था, यानी कि पास्ट में गोइंग ऑन, हो रहा था, मैं जा रही थी, वो आ रहा था। ये इसको कब पाओगे? जब थोड़ा ज्यादा पास्ट होगा तो इसका इस्तेमाल पाओगे। ठीक है? और ये सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये हम पास्ट के लिए पाएंगे। नाउ सी, मैं आपको जितने स्टोरीज दे रही हूं, बस मैं आपको ये स्ट्रक्चर, मैं खुद भी कोशिश करती हूं जहां से ज्यादा हो सके उस स्टोरी में को चेंज करके आसान करने का, ताकि आप समझ सको, ताकि आपको महसूस हो कि हम पढ़ेंगे तो हम समझ सकेंगे। हम सिर्फ आपसे इतना ही तो करवा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है? पास्ट खत्म, सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट में हो रहा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING। मेरी मां इंतजार कर रही थी, माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस फॉर लंच। ठीक है? जब उसने मुझे देखा, वेन शी सॉ मी,
ठीक है, उन्होंने मुझे डांटा, शी स्कोल्डेड मी, ठीक है ना, क्योंकि बाहर कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, बिकॉज कोरोना वॉज स्प्रेडिंग इन दिल्ली वेरी फास्ट। लास्ट में पास्ट की बात करेंगे तो वॉज स्प्रेडिंग, और अभी भी फैल रहा है तो इज स्प्रेडिंग, वो बात की बात है। लेकिन अभी जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस में यही 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करना इसमें आपको मिस्टेक ना हो, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करो, रिपीट। किस चीज को रिपीट करना है कृष्ण? मैंने यही कहा कि मेरी मां इंतजार कर रही थी। आई फाउंड दैट मेरी मां इंतजार कर रही थी। माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस। और अगर मैं ये कहूं कि माई मदर वॉज वेटिंग फॉर अस में ये वॉज हटा दूं तो दैट हटाना पड़ेगा। आगे फिर देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें स्कोल्ड किया, डाटा। स्कोल्ड का सेकेंड फॉर्म है स्कोल्डेड अस, ठीक है ना। शी स्कोल्डेड अस किस चीज के लिए? बाहर जाने के लिए। फॉर, अब देखो ये प्रेपोजिशन है, फॉर, इन, ऑन, बट, और जब भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगाओगे ना तो आईएनजी आएगा, फॉर गोइंग आउट, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? शी सर्व्ड मतलब परोसना, सेकेंड फॉर्म है परोसने का। क्या? लंच। किसके लिए? हमारे लिए, फॉर अस, ठीक है। अगर हम कहें लंच बहुत स्वादिष्ट था, द लंच वॉज वेरी टेस्टी। वॉज क्या है? बी का सेकेंड फॉर्म है, देखो, वॉज वेरी टेस्टी। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, सोचने की कोशिश करो, अपने आप को भी चेक करो, गूगल ट्रांसलेशन से चेक करो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, also where I use also, beta, generally when you use also it comes after the helping verb and before the main verb. GS का कोड क्या है बेटा? अभी तो उसका कोड जानती हूँ, एंड ऑफ मंथ है। रीजनिंग का कोड एंड ऑफ मंथ है, और GS का कोड तो बर्थडे था शायद। GS अप टू IS प्री लेवल है बेटा, अप टू IS प्री लेवल है। नेक्स्ट, यस मानसी, पूरा कंप्लीट रीजनिंग है, PO का, SSC का, सब तरह का, CSAT का, FCAT का, सबका कंप्लीट है। वॉल्यूम 1 ऑर्डर हो जाएगा। एक कुमार एक बार ट्राई करो। प्रदीप, यस। कंपल्सरी का न्यू बैच बेटा अभी तो नहीं है, स्पोकन का न्यू बैच आने वाला है, कंपल्सरी का मैं बता दूंगी। अब सुनो, मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से आप लोग चेक करोगे कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं। मतलब आप अपने आप को चेक करके देखो कि जब आप पढ़ रहे हो तो देखो, मैंने वो कहा था सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बस यही चलेगा। प्लीज रीड ऑल द स्टोरीज दैट आई गिव यू, बिकॉज दीज स्टोरीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड past action, and remember you make more mistakes in past because you have to translate the verb into second form, and that you forget how to do that. Now see, on a rainy night, एक बरसात की रात में इंग्लैंड में Herbert White, यहां कॉमा होना चाहिए, and his father Mr. White were playing chess। देखो were playing है, were playing क्यों है? क्योंकि खेल रहे थे। मैंने कहा था ना आपको, सिंपल पास्ट होगा, नहीं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और ज्यादा पास्ट होगा तो हैड प्लस V3 होगा, उसके अलावा कुछ रहता ही नहीं है। वर प्लेइंग चेस, जैसे इसकी मदर ने, उसी समय उसकी माँ ने क्या किया? एज हिज मदर वॉज बिजी, देखो वॉज सीधा V2 है, बिजी निटिंग बाय द फायर, इसका मतलब वो बिजी थी
स्वेटर बुनने में। देखो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है? द फादर एंड द सन वर प्लेइंग चेस एंड द मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर, है ना। तो निटिंग के बाद अ स्वेटर नहीं लगाया क्योंकि वो बुन रही थी, तो वर निटिंग है और बिजी लगा दिया कि मतलब वो निटिंग करने में बिजी थी, बस हो गया। देखो दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। They were waiting for Mr. White's old friend. They were waiting, वो इंतजार कर रहे थे किसका? मिस्टर वाइट का एक ओल्ड फ्रेंड था उसका, जो मैंने पढ़ाया है ना, मैं आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर सिखा रही हूं। Am I right? If you find me wrong, let me know. कौन था फ्रेंड? मेजर मॉरिस, अ वॉर वेटरन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटरन? ध्यान रखना, जो कोई चीज में बहुत मंझा हुआ हो जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ वेटरन। लाइक अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन इन बॉलीवुड, लाइक सचिन तेंदुलकर इज अ वेटरन इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, है ना। सो दिस मैन वॉज अ वेटरन इन वॉर, क्योंकि ये बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हो गया था। कहां पे? वॉर में, बहुत मंझा हुआ सोल्जर होगा। When Morris arrived, देखो सेकेंड फॉर्म, द फैमिली ऑफर्ड हिम अ ड्रिंक, उसे एक पे दिया उसने, ऑफर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड आफ्टर अ फ्यू मोर, कुछ और ड्रिंक्स के बाद, मिस्टर वाइट इंक्वायर्ड, उसका जो फादर था, लड़के का फादर था, उन्होंने इंक्वायर किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उस मंकी पॉ के बारे में, कि मंकी का जो हाथ है उसके बारे में, जो मॉरिस ने एक बार पहले, देखो हैड प्लस V3 आ गया, एक बार पहले वार्तालाप में, प्रीवियस कन्वर्सेशन में उसने मेंशन किया था। मैंने क्या कहा था आपको? आज पास्ट को पूरा समझ लो, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंस और सम अदर टेंस, राइट। मैंने कहा था पास्ट एक्शन V2, थोड़ा ज्यादा पास्ट हो जाए तो हैड प्लस V3। इसका मतलब मिस्टर वाइट ने इंक्वायरी किया, तो इंक्वायर्ड किसके बारे में? उस मंकी पॉ के बारे में, जिसके बारे में मॉरिस ने पहले एक बार बताया था। तो पहले बताया था ज्यादा पास्ट, हैड मेंशन्ड, देख लो। नेक्स्ट, with have and has uses, अजय, has comes with he, she, it name singular। प्रेजेंट का पूछ रहे हो, I, we, they, you प्लूरल का have आता है। Yesterday, ज्योति at 8 o'clock, yes, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास हफ्ते में 3 दिन होती है बेटा, और अगर कंपल्सरी इंग्लिश लोगे तो 6 दिन हो जाएगा। यस, मैथ्स का रिंकू हम लोग बस इसी वीक वेंसडे थर्सडे तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। मेरा वॉइस तो बिल्कुल क्लियर होगा करमवीर। नेक्स्ट, नहीं, आई सैट टू स्टडी होगा ज्योति, बिकॉज टीच का मतलब पढ़ाना होता है, स्टडी का मतलब पढ़ना होता है, और दो वर्ब को ऐसे सीधा नहीं लिख देते, हमेशा याद रखना। अभी फिलहाल मैं आपको जो पढ़ा रही हूं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये कहूंगी, फर्स्ट वर्ब के बाद सेकेंड वर्ब लगाना है तो टू लगा दो बीच में। शशि, आप उससे भी याद कर लो, टेलीग्राम से, पोर्टल में मैं बहुत अच्छे से पीपीटी बना के आपको दे दूंगी। डैम, डैम का मतलब यूज होता है, जानते हैं क्या? जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हो ना, कहते हो डैम, यानी है ना, जैसे ओह, इस टाइप से, ठीक है। और अगर मैं कहूं इट्स डैम गुड, यानी बहुत अच्छा है, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। आई वॉन्ट टू, नहीं ज्योति, आई वॉन्ट भी नहीं होगा, वॉन्टेड होगा भाई, सिंपल पास्ट टेंस है। मैं पढ़ना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू स्टडी के बीच में होल डे कैसे लगा रहे हो? आई वॉन्टेड क्या? टू स्टडी, पहले टू स्टडी खत्म करो, उसके बाद फॉर द होल डे। नेक्स्ट, आई केम फॉर मीटिंग यू, आई केम टू मीट यू टू स्टडी एंड नॉट टू प्ले। पर्पस लगाने की जरूरत ही नहीं सौरभ। I came to meet you to study and not to play. I sat for study नहीं होगा अमित, अमन राजपूत, I sat to study होगा। अभी मैं उसके स्ट्रक्चर और कराऊंगी आपको।
बट माई फ्रेंड केम. यस, आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर 24 आवर्स नहीं होगा, फॉर द होल डे होगा. ठीक है, आई वॉन्टेड टू स्टडी फॉर द होल डे.